Hello students, myself Poonam. As you all know that in our last class we have completed our chapter aggregate demand, and today we are going to start a new chapter, a new topic. The name of topic is income determination and multiplier. So let's start our today's topic. But firstly start our topic, we must know about some important points. What is an important point? Firstly, we must know about the determination of equilibrium level. Firstly, we must know about the determination of equilibrium level. पहले हमें पता होना चाहिए कि equilibrium level क्या होता है. So, पहले इसको पढ़ते हैं. क्या होता है equilibrium level? Definition: an economy is an equilibrium when aggregate demand for goods and service is equal to aggregate supply for a period of time. Okay? An economy, किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट तब होगा कब? when aggregate demand, जब aggregate demand किसकी? गुड्स और सर्विसेज की is equal to, बराबर होगी किसके? aggregate सप्लाई के. तो when aggregate demand is equal to aggregate supply in a period of time, we can say that it is an equilibrium point of an economy. जब किसी भी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है तो हम उसे कह सकते हैं कि ये क्या है? एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है. सो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I. कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. We also know about the aggregate supply. What is an aggregate supply? Consumption plus saving is equal to aggregate supply. We can also say that aggregate supply is equal to Y. What is the mean of the Y? The mean of the Y is income, is a national income. We calculate Y, we indicate Y as a national income. So aggregate supply is our national income and we use in C plus S. C means consumption, S means saving. So aggregate demand means C plus I and aggregate supply means C plus S. अगर हम ये मान के चलते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हम इक्वल मान रहे हैं, हम इनको इक्विलिब्रियम लेकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है? एग्रीगेट सप्लाई के. एग्रीगेट डिमांड को हम क्या कहते हैं? C प्लस I. और एग्रीगेट सप्लाई को हम क्या कहते हैं? C प्लस S. दोनों साइड पर हमारे पास C है तो हमने C को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया. वैसे भी अगर हम मैथ की कैलकुलेशन के हिसाब से करेंगे तो C यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा हमारे पास? I प्लस S. I का मीन्स क्या होता है? इन्वेस्टमेंट. I मीन्स इन्वेस्टमेंट, S मीन्स सेविंग. तो एक बार हमने कहा कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. इन सेकेंड टर्म हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग. ये दो अप्रोचेज आ जाते हैं हमारे पास जहाँ पर हम अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को जानने की कोशिश करते हैं. सो अगर हम कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें हमेशा दो अप्रोचेज का यूज़ करना पड़ता है. फर्स्ट अप्रोच इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड सेकेंड अप्रोच इज IS मीन्स इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच. सो two approaches for determining the equilibrium level of income and employment in a economy: aggregate demand and aggregate supply approach and saving and investment approach. So firstly we read about the aggregate demand and aggregate supply approach. Today our topic is aggregate demand and aggregate supply approach. Aggregate demand is equal to aggregate supply. So aggregate demand means C plus I, consumption plus investment. Aggregate supply means C plus S, consumption plus saving. So start with a table. This is a table. We use same table in all three chapters. Y is equal to 0, 100, 200, 300, 400, 500 and 600. C
40, 120, 200, 280, 360, 440, 520. And I is the same, 40, 40. ये we assume it I is a common and it is a same. S को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास एक यही फॉर्मूला था कि y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस s. और अगर इफ वी वांट टू फाइंड अबाउट द s, देन व्हाट इज y माइनस c. इट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द s. And by using this formula we calculate s, minus 40, minus 20, 0, 20, 40, 60, 80. So aggregate demand means C plus I, aggregate supply means C plus S. When we add C plus I, we find out the aggregate demand, and when we adding C plus S, we find the aggregate supply. So यहाँ पर हम अपने कुछ पॉइंट्स को देखते हैं. अगर मैं सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर ध्यान दूँ, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड क्या है 80, देन एग्रीगेट सप्लाई क्या है 0. 160, 100, 240, 200, 320, 300, 400, 400, 480, 500, 560, 600. कि एक पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों क्या है इक्वल. मैंने इसको टेबल को अपने हाईलाइट भी कर रखा है. 400 इज इक्वल टू 400. जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हैं, वो क्या हो गया हमारे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. अब अगर मैं इससे ऊपर जाती हूँ तो देखिए डिमांड क्या है ज़्यादा, जबकि सप्लाई क्या हो रही है कम. यानी कि ये क्या है एक्सेस डिमांड है. लोग ज़्यादा चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं बट हम उन्हें इतनी सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं. लेकिन अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या है डिमांड कम है जबकि सप्लाई क्या है ज़्यादा. तो इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ही होगा जहाँ पर दोनों चीज़ें क्या होंगी बराबर. अब उसके अपोजिट भी दोनों चीज़ें होंगी. एक बार क्या हो रही होगी, या तो डिमांड ज़्यादा हो रही होगी या फिर डिमांड कम हो रही होगी. सेम पोजीशन हमारे लिए किसके पास आती है, सप्लाई के लिए भी आती है कि या तो सप्लाई ज़्यादा भी हो सकती है और सप्लाई हमारे पास कम भी हो सकती है. ओके, इसको डायग्राम से समझते हैं. ये इसका डायग्राम है आपके लिए. मान लीजिए ये क्या है हमारे लिए, हमारी इस साइड पर हम अपनी शो कर रहे हैं इनकम. यहाँ पर हम दिखा रहे हैं अपनी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई. तो ये हमारे लिए किसका डायग्राम है, एग्रीगेट सप्लाई का. और ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल. और ये क्या है हमारे लिए, हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई. तो जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. और ये वाला पोर्शन क्या है, यहाँ पर देखिए अगर इनमें सिर्फ लाइन्स को देखूँ, ये डिमांड की लाइन है और ये सप्लाई की लाइन है. डिमांड की लाइन क्या जा रही है, ऊपर जा रही है. इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या है, मोर देन है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से. सो एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई. वी कैन से दैट इज अ एक्सेस ऑफ डिमांड. और अगर हम दूसरी साइड पर जाते हैं तो यहाँ पर क्या है देखिए, इनकम या एग्रीगेट सप्लाई की लाइन क्या है अबव है और एग्रीगेट डिमांड की लाइन क्या है नीचे है. तो हम क्या कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई. इसको सिंपल फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड. यानी कि यहाँ पर सप्लाई क्या है ज़्यादा है बजाय कि एग्रीगेट डिमांड के. तो ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट. एक पॉइंट हो गया आपके लिए आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये हो गया जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या है ज़्यादा है. ये क्या है जहाँ पर डिमांड क्या है आपकी कम है. सो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है. आज आपके लिए जो क्वेश्चन है जिसका आप मुझे आंसर सेंड करेंगे वो है व्हाट इज़ इफेक्टिव डिमांड. इसी टॉपिक को जब आप बार बार ढंग से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. आपको मुझे इसका आंसर लेकर भेजना है व्हाट इज़ इफेक्टिव डिमांड. ओके, वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में है. इसी वीडियो के अंदर से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है और आपको इसी का आंसर सही तरीके से मुझे सेंड करना है. आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.